Assalamu alaikum students, how are you? As you all know, we have started our chapter 8 which is Aliphatic hydrocarbons, and in that we have reached our last topic, which is alkynes. Today we are going to discuss about the physical properties and chemical reactions of alkynes. Okay, first of all, coming to the physical properties, number one, all of these members are basically odorless except one, which is first member, which is acetylene. Acetylene has garlic like odor in it, right? So all of the rest of them are odorless, but acetylene has garlic like odor. Second one is state. First three members are gases, then member number 4 to 11 are liquid, and from liquid to so on are solids. Their melting points, boiling points and density increase when the molecular mass increase with higher structures, and also they are non-polar, so they will be dissolved in non-polar solutions. Coming to the reactivity of alkynes, as you all know, alkynes have triple bond in them, so their electron density is very much packed. The electrons are like very much packed inside two atoms. Because of presence of triple bond, two atoms become close to each other, right? So the electrons are less exposed as compared to alkenes, so they will be somehow less reactive than alkenes. So first of all, we are going to discuss about the addition reactions of alkynes. First one is addition of hydrogen, in which we are going to add hydrogen in the presence of some metal, and we are going to heat it. One hydrogen, as you already know, will move towards this carbon, and one hydrogen will move towards this carbon. तो ये बनेगा CH2 double bond CH2. In next step, अब हमारे पास ये बनी एल्कीन. तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन तो नहीं हुई. कंप्लीट हाइड्रोजनेशन तब होगी जब हमारे पास ट्रिपल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगेन हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे. एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये हो जाएगा CH3. एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, ये हो जाएगा CH3. तो ये बनेगा ईथेन. सो बेसिकली वी हैव कन्वर्टेड इथाइन इनटू ईथेन. तो ये वाला रिएक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं आप सबको पता है, फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल. सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस. जिस तरह हमने हाइड्रोजन ऐड किया, बिल्कुल वैसे ही हमने हैलोजेंस ऐड करने, बट इन इनर्ट एटमोसफियर. फॉर दैट वी टेक कार्बन टेट्राक्लोराइड. We will add chlorine to it. One chlorine will move towards this carbon and the other one to this carbon. ये हो जाएगा CHCl double bond CHCl. जब हम ऐड करते हैं तो एक एक बॉन्ड कम होते जाता है. Then again we will add Cl2. तो ये हो जाएगा CHCl2. ये CH ऑलरेडी वहाँ पे था, और दो क्लोरीन हो गए इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, C दो क्लोरीन एंड H. सो इसका नाम क्या होगा? इसके अंदर दो कार्बन हैं, तो ये बेसिकली क्या है? इथेन. फर्स्ट कार्बन के साथ भी दो क्लोरीन है, सेकंड कार्बन के साथ भी दो क्लोरीन है. सो 1,1,2,2 tetrachloroethane. This is the IUPAC name of this structure. Then addition of halogens. I hope this structure was clear to you. CH double bond CH ClCl, and then 1,1,2,2 tetrachloroethane, because first and second carbon contains 2,2 chlorine. Alright, moving to the third reaction, which is addition of halogen acids. Halogen acids like HCl, HBr, etc. So we are going to add halogen acids. As you can see, this alkyne is unsymmetrical. Unsymmetrical इसका मतलब यहाँ सिमेट्रिकल. यहाँ पे कोई दोनों जो कार्बन है वो दोनों सेम है. इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है. इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है. सो दिस इज अ सिमेट्रिकल कार्बन. तो डजेंट मैटर आप हाइड्रोजन किधर भेज रहे हैं और ब्रोमीन किधर भेज रहे हैं. रिमेंबर मार्कोनिकॉव्स रूल. सो हमने HBr ऐड किया, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ भेज दिया इस कार्बन के पास, और ब्रोमीन हमने भेज दिया इस कार्बन के पास. सो ये हो जाएगा CH2 double bond CHBr. As I already told you, this group is called vinyl, so it is vinyl bromide. Again we will add HBr to vinyl bromide, but now this is not an symmetrical structure. This carbon has one hydrogen and this carbon has two hydrogens. So here we are going to apply Markovnikov's rule, in which hydrogen is going to the negative part is going to the carbon which has less number of hydrogens. So negative part of the reagent is this bromine. This will go to the carbon which has less number of hydrogens, which is this carbon. ठीक है, तो ये ब्रोमीन जाएगी इस कार्बन के पास, and hydrogen will go to the carbon which has more number of hydrogens, जो कि ये है. तो ये यहाँ पे जाएगी हाइड्रोजन. तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक ब्रोमीन जो कि ऑलरेडी था, और फिर दूसरा ब्रोमीन.
तो हम आपने मार्कोनिकॉव रूल का ख्याल रखना है यहाँ पे भी। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 कार्बन है 1 and 2, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 1 and 2. सो 1 हैज़ 2 bromines attached to it, 1 dibromoethane, 1 dibromoethane. Fourth one is addition of water. When we add water to our alkyne, what happens is that water has 2 ends, H positive and OH negative. तो ये भी आप देख सकते हैं symmetrical structure है, so we can add anywhere CH2 double bond CHOH. तो यहाँ पे यही लिख लें CH2 double bond CHOH. मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया. अब क्या होगा, this double bond this will be shifted over onto this carbon. क्यों? क्योंकि जो OH का बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक करेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी. ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, दिस बॉन्ड शिफ्टेड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन. जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 2 4 5, लेकिन हमें कितने चाहिए 4. तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को सिंगल करने की कोशिश करेंगे. हम इस बॉन्ड को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे. इसका मतलब ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज. यहाँ से क्या निकला था, हाइड्रोजन विच वॉज पॉजिटिवली चार्ज, और ये कार्बन क्या हो गई नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लिए. तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन दोनों मिलके बना देंगे CH3, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. So this is basically a acid aldehyde structure. ठीक है, दोबारा से देखें प्रोपाइन के साथ, दिस वाज इथाइन, इट इज प्रोपाइन. अगेन हमने वाटर ऐड करना है, बट दिस टाइम यू हैव टू कंसिडर द मार्कोनिकॉव रूल बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट सिमेट्रिकल, इट्स अनसिमेट्रिकल. सो आई एम गोइंग टू ऐड नेगेटिव reagent to the carbon which has less or no number of hydrogens, and also I am going to add hydrogen to the carbon which has, and that carbon you have to consider which is of double or triple bond. सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ. So negative reagent goes to this carbon because it has no hydrogens, and hydrogen goes towards this carbon because it has a hydrogen. So ये हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, क्योंकि हमने ऐड कर दिया ना, एक साइड पे OH और एक साइड पे H, तो ये ट्रिपल से होगा डबल. तो अगेन यही होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा. जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन के बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2 4 and 5. तो हमें कितने बॉन्ड्स चाहिए कार्बन के, 4. तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को वी विल शिफ्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑनटू दिस कार्बन. जब ये इलेक्ट्रॉन्स हम इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, दिस कार्बन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, इट विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन. तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C double bond O CH3. This is acetone. This is the structure of acetone. Okay, so last addition reaction is addition of ammonia and HCN to alkynes. जब अमोनिया ऐड करते हैं इथाइन के अंदर in the presence of aluminium oxide and high temperature which is 300 degree centigrade, तो हमारे पास क्या होता है, इट हैज़ 3 हाइड्रोजन्स. तो ये इनमें से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएंगे, बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ से सिंगल, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बॉन्ड हो जाएगा डबल, फिर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बॉन्ड हो जाएगा सिंगल. एंड दिस कार्बन विल बी कनेक्टेड टू नाइट्रोजन. एक कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन अटैच किए और दूसरे कार्बन के साथ नाइट्रोजन. दिस नाइट्रोजन इज विच इज कनेक्टेड टू द कार्बन, दिस इज नोन एज सियानो ग्रुप. तो हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया इसके अंदर, सियानो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया है. सो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैड इन द स्ट्रक्चर, 3 4 and 5, एंड वी हैव ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन्स इन दिस स्ट्रक्चर. 2 हाइड्रोजन्स आर लेफ्ट जो कि हमारे पास रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म जो कि हमारे बुक में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हेन यू ऐड अमोनिया टू alkyne, cyano group will be introduced into it. That's it. Then next structure is in which we are already adding cyano group. यहाँ पे हमने cyano group खुद create किया था, यहाँ पे हम cyano group बाहर से add कर. This is cyano group CN. ठीक है, हमने alkyne ली जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं HCN in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride. हमने उसको हीट किया तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन है और एक सियानो है. तो हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चली जाएगी, सियानो दूसरी कार्बन के पास. तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH
C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, cyano। तो यहाँ पे हमने खुद क्रिएट किया था, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने जस्ट क्या कर दिया, अटैच कर दिया इसको। सो दिस वाज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN। सो इट इज़ ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शंस। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन एंड polymerization. Till then, Allah Hafiz.